Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. So it has been a very long time since मैंने कोई वीडियो बनाई है on the channel. I think the last time I put up a video was like 2 months ago. और yeah, long overdue. बहुत सी बातें आपको मैंने बतानी है नई जो हुई हैं, जो हो रही हैं. Lots of catching up to do. But उसके साथ साथ बहुत सी और चीज़ें हैं जो सिखानी भी हैं on the channel that I haven't been able to do. वीडियो आई क्यों नहीं काफ़ी देर से, उसका रीज़न ये है बीच में मेरे पेपर्स आ गए कुछ. I wasn't able to be as regular as I would have wanted to be. But yeah, खैर बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में. सो द लाइटिंग इज़ टेरिबल राइट नाउ, बट ये गाड़ी आई बॉट इट, आई थिंक अब तो तकरीबन 3 माह हो चुके हैं सिंस आई बॉट द कार, लेकिन मैंने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाई. इनिशियली आई वॉज a bit hesitant. I wasn't sure कि मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए वीडियो, because I really don't want to influence people, 20-year-olds, 18-year-olds, 19-year-olds जो वीडियो देख रहे होंगे. I don't want to influence them to think they need to buy a car, but at the same time I think you guys have been through the journey of seeing me grow as a professional. उसके साथ साथ I also wanted to give some financial advice on whether I think कि किसको गाड़ी ले लेनी चाहिए, किसको नहीं. Again obviously मर्जी तो आपकी है, but मेरी kind of financial advice जिसको मैंने follow किया and that I think would be good for you guys as well. So गाड़ी कौन सी है? गाड़ी it is Civic Reborn VTI Oriole. I've been really enjoying this car. It's fun. It's enjoy करता हूँ मैं इसको. मैंने इसकी क्लिप्स वगैरह लगाए होंगे आगे पीछे से, whatever it looks like. लेकिन ये कोई पार्क व्हील्स नहीं है. I'm not going to review the car कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है ड्राइविंग द कार, या आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो आपने खुद फैसला करना है. I for one am really enjoying it. और बट ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, that is going to be about buying a car. Why do people buy cars? Why did I buy a car? Or do I think you should buy one? एक और चीज़ I wanted to point out, मैंने अगर गाड़ी लेनी होती है as such, I could have bought this car, I could have bought a car like 2 साल पहले. So it's not like अब जाके मतलब Alhamdulillah I have been financially independent enough कि मैं ले सकता था गाड़ी. ली मैंने इसलिए नहीं because I didn't think I needed it at the time. I still don't think I need it per se. और ये जब हम आगे डिस्कशन करेंगे on why people buy cars तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, because I want to have a very real discussion and talk about these things. क्योंकि अगर मैं आप लोगों को पैसे बनाना सिखाता हूँ तो किसी हद तक अगर मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है पैसे खर्च करना, तो अगर मैं आप लोगों तक वो पहुँचा सकूँ और किसी का कोई फ़ायदा हो जाए तो दैट वुड बी अ गुड थिंग. सो पहली बात तो ये है कि why do people buy cars? 3 रीज़न्स होते हैं जिस वजह से कोई गाड़ी ख़रीदता है. पहला रीज़न तो ये होता है कि टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक जगह से दूसरी जगह जाना. एंड आई एम हेयर टू से कि अगर आप इफ़ यूर अ गाय एंड यूर लाइक 18, 19, 20, 21, whatever, 22, 3 even, you don't need a car to go from point A to point B because CD70 works fine, and that was what I was using जब तक मैंने गाड़ी नहीं खरीदी. So I don't think you need a car to move from point A to point B unless आपकी ड्राइव बहुत ज़्यादा है. I would still say बर्दाश्त कर लो because CD70 या कोई भी बाइक is going to be very economical and a car is obviously not as economical, ख़रीदने में भी चलाने में भी. फिर आ जाती है दूसरी बात. मैं सीट बेल्ट लगा लूँ इससे पहले के लोग, वैसे मैं सोसाइटी के अंदर ही फेर रहा हूँ, बट इससे पहले के लोग पॉइंट आउट करें.
So I don't think you need to buy a car if you're a guy. जब आप एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच जाते हो then things change. वो आगे और डिस्कशन करते हैं. If you're a girl, तो फिर I think it would make sense 18, 19, 20, 21 में to buy a car because बाइक चलाना ऐसे possible नहीं होता. So yeah, ये तो पहला रीज़न हो गया. This was definitely not my reason. Then comes reason number 2 जिस वजह से लोग गाड़ी ख़रीदते हैं, and that is के उनको एक पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का दिखना. और अनफॉर्चुनेटली कहें, फॉर्चुनेटली कहें या ज़िंदगी की हकीकत कहें, गाड़ी जो है उसको एक स्टेटस सिंबल कंसिडर किया जाता है. उसको मैं जिस गाड़ी में फिरता हूँ वो आकाश है इस बात की. क्या उर्दू बोल दी यार. जिस गाड़ी में फिरता हूँ वो इस बात की आकाश है कि मैं किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. और ये रीज़न है. अब मैं आपको जितना मर्जी बोलता रहूँ यहाँ पे कि नहीं ऐसा नहीं होता या ऐसा नहीं होना चाहिए, डजंट रियली मैटर बिकॉज दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. सो ये दूसरा रीज़न होता है. अगेन दिस इजंट रियली अ रीज़न दैट bothers me या at least used to bother me up till recently. फिर आ जाता है तीसरा रीज़न, and that is the reason why I bought a car. And that was कि जो आपके आगे पीछे लोग हैं, be it your family, be it your friends, be it your colleagues, they now expect कि आपके पास गाड़ी होगी. That is their expectation. और आप कह लें कि मेरी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए, एंड दैट इज़ वाई आई वांटेड टू हैव दिस डिस्कशन ऑफ बाइंग अ कार. मेरी सिचुएशन कुछ थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि आई हैव अ वेरी इन अ वे पब्लिक प्रोफेशनल लाइफ. क्योंकि मैं यूट्यूब है, ठीक है, लोगों को सिखाता हूँ, एंड सो लोगों को पता होता है कि यार अच्छा ये काम करता है एंड ये इस फाइनेंशियल पोजीशन पे है. ऑल्दो मैं बहुत देर से ऐसे अपडेट्स वगैरह नहीं देता है, एंड व्हाटएवर फाइनेंशियल पोजीशन आई एम एट, मैं उसको इतना डिस्क्लोज नहीं करता. वक्तन फ़वक्तन कुछ लैंडमार्क्स वगैरह बताता रहता हूँ, बट या लोगों को ये पता होता है. सो दे हैव दिस एक्सपेक्टेशन एंड द फैक्ट कि मैं लोगों को सिखाता हूँ. जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती या होती थी तो पीपल यूज टू टेक दैट एज अ मार्क ऑफ लाइक अगर तू इतना ही होता, तुझे इतना ही आता होता तो तेरे पास अपनी गाड़ी ना होती, तो ये 70 पे फिर रहा होता. एंड सो फॉर मी इट केम टू अ पॉइंट वेयर नाउ पीपल वर एक्सपेक्टिंग एंड पीपल वर जब वो मेरे से मिलते थे थॉट ऑब्वियसली इसके पास गाड़ी होगी. एंड दैट कपल्ड विद द फैक्ट कि अब मैं पब्लिक में थोड़ा बहुत पहचाना जाने लग पड़ा. और या कभी कभी होता है you get into an awkward situation where somebody's your fan and somebody's like, oh, you really helped me through a difficult financial time, and they are on a car and you're on 70. So इसीलिए अगेन कुछ लोगों के लिए जल्दी आ जाएगा, मेरे लिए थोड़ा जल्दी आ गया बिकॉज आई टोल्ड यू कि मेरी थोड़ी एक पब्लिक सिचुएशन थी. बट फॉर मोस्ट पीपल आई वुड से ये पॉइंट आएगा ज़रा 25-26 के पास जाके कि अब वो पॉइंट आ गया कि जहाँ पे अब लड़की वालों ने रिश्ता नहीं देना जब तक गाड़ी नहीं होगी, एंड सो उनके लिए तब जाके आएगा. सो दिस वाज द रीज़न व्हाई आई बॉट अ कार. डू आई थिंक यू शुड बाय अ कार इफ़ यू आर 21? No, I have been vocal about this, even अपनी फैमिली को भी, as I said, I could have bought a car a long time ago. और लोग यही काम पहला करते हैं जब वो पैसे बनाना शुरू करते हैं, मतलब सीरियस पैसे बनाना शुरू करते हैं. But I was vocal about this कि I would rather invest money into assets that would help me buying these depreciating assets. अगर आपको समझ नहीं आई तो थोड़ा सा मैं elaborate कर देता हूँ. I wanted to spend money ऐसी जगहों पे कि जहाँ से मेरी पैसिव इनकम जनरेट हो. उस पैसिव इनकम जनरेट होने से मैं ऐसी चीज़ें ख़रीदूँ जो वक्त के साथ साथ जिनकी वैल्यू नीचे जाएगी. ठीक है, अब ये आम इस तरह में अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से देखो तो सबसे जो कॉमन एक है ना पैसिव इनकम का ज़रिया जिसमें लोग इन्वेस्ट करे होते हैं वो होता है प्लॉट्स वगैरह, ज़मीनें वगैरह,
और ये सबसे ज़्यादा लोगों को यूजुअली समझ आता है. ये बहुत हाई बैरियर ऑफ एंट्री है, ऑब्वियसली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता. इवन मेरे लिए अब तक आई हैवंट बीन इनटू, आई वुड लाइक टू बी इनटू बाइंग रियल एस्टेट. एज ऑफ नाउ आई एम नॉट, लेकिन मैंने और जगहों पे इन्वेस्ट किया है. आई ट्राई टू बिल्ड माई ओन ऑनलाइन properties, जिनको websites कहा जाता है, and I'm making money through them, so it's passive, and those things have then helped me buy ऐसी चीज़ें जो कि जैसे गाड़ी हो गई कि जिसने वक्त के साथ साथ इसकी वैल्यू ने नीचे जाना है, and so ये एक depreciating asset है. If you want more details on what an appreciating asset and what a depreciating asset is, तो एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, वो आप पढ़ लें. उसके अंदर बड़ा अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन किया हुआ है. बहुत छोटी सी बुक है और उसमें भी अगर आप लिटरली सिर्फ फर्स्ट हाफ ही पढ़ लो, दैट वुड बी इनफ. सेकंड हाफ की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू रीड इट तो पढ़ लो बेशक पूरी. बट खैर दैट वुड हेल्प यू इन डिसाइडिंग whether you should buy a car, whether a car is a good asset to buy, और इस तरह की बातें. So that's that. Do I think you should buy a car if you're 21? I think सिर्फ 2 ऐसे लोग होंगे कि जिनको शायद मैं कहूँ कि it makes sense कि ठीक है आपने गाड़ी ख़रीद ली. Person number 1 would be ऐसे लोग कि जिनको बहुत शौक है गाड़ियों का, ठीक है. और अगेन ऐसे लोग जिनको शौक है वो एक चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं, यू नो, एट अ सर्टन लेवल यू अंडरस्टैंड कि यार इस बंदे को शौक है, इसने ख़रीद ली. आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल. दो मैं अब इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद आई एम रियली एंजॉइंग इट, और मेरे बहुत से ऐसे नए शौक निकले हैं रिलेटेड टू गाड़ियाँ. गाड़ियों की डिटेलिंग करने का मुझे अचानक से बड़ा शौक हो गया. मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता हूँ और मैं इसकी भी डिटेलिंग करता रहता हूँ, और यू नो इस तरह की चीज़ें. सो बट वैसे ऐसा कहो कि मैं कार फैनेटिक नहीं हूँ इन एनी केस. तो यहाँ ऐसे लोग हो जाएं. दूसरा, कोई गाड़ी ले वो तब ले कि जब मैं कहूँ कि आपको इस गाड़ी के लिए जोड़ के कई महीने के लिए पैसे जमा नहीं करने पड़ेंगे. सो अपने आप को पहले एक ऐसे आई थिंक एक ऐसे फाइनेंशियल पॉइंट पे लेके आए. अगेन दिस इज़ नॉट द फाइनल कार दैट आई वांट टू बाय. व्हाई आई बॉट दिस कार इज आई कुड कंफर्टेबली बाय दिस कार. इवेंचुअली इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया और जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह अल्लाह ने पूरा किया. तो इवेंचुअली इसको आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करके और बेहतर से बेहतर गाड़ियों पे भी इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा दिन दिखाए कि जा सकूं मैं. बट दिस वाज जस्ट काइंड ऑफ माय अपडेट. व्हाट अ कार. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. और दिस इज जस्ट माय फाइनेंशियल एडवाइस ऑन वेदर यू शुड बाय वन. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल कि आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए हैं, या यू नो डिड यू एंजॉय इट, एंड शुड आई मे बी टॉक मोर अबाउट ऐसी चीज़ें. सी यू इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफ़िज़.